Diffraction. Okay. Oh, actually it's not diffraction. It is a interference. But how it is occurring, that we don't know, and that is what we are going to see. All right. Now 52 students are there. That is strength here. All right. Why camera lenses look purple in color? You might have seen the camera lenses. Even your mobile camera, if you see closely, its lens is its lens also have a purple color, purple shade. Though actually that lens is a transparent. How to find wavelength of monochromatic light? So, are you able to find out the wavelength of monochromatic light? Do you know any method or technique? Yes or no? Do you know any method by which you can find out wavelength of monochromatic light? Yes or no? Sir, YDSC. Right? YDSC. YDSC experiment. Which experiment? Young's double slit. Yes, yes. Okay, okay. Short form. Young's double slit experiment. Correct. So that method is there. But in the there is one more method using interference method. Other than that Young's double slit experiment, actually there is a diffraction in the Young's double slit experiment. There is a diffraction plus interference. So without using diffraction phenomenon, also we can find out the wavelength of monochromatic light. How to find a refractive index of a liquid accurately using interference? So रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड ग्लास स्लैब आप फाइंड आउट कर सकते हो. ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने फाइंड आउट किया है बचपन में स्कूल में. लेकिन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि पेट्रोल, वाटर, केरोसिन एटसेट्रा जो लिक्विड्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स, क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड आउट कर सकते हो? यस, यस और नो? डू यू नो द एनी मेथड फॉर दिस? Sir. Yes. Refractive index of liquid is a little bit tricky part. Okay. How beautiful colors appear on soap bubble? वो तो मैंने शुरू में ही बोला था आपको. All right. So all these questions answers are hidden in this particular chapter. So this chapter is really interesting, not just for your examination, but is also really curious to know the things related to this particular thing and how that interference is essential to study that you will learn. All right. Before starting off the interference, you should know about electromagnetic spectrum. Okay. Electromagnetic spectrum. I will just write here. Electromagnetic spectrum. Okay. Now, why this is called as electromagnetic? Can you give me the example of electromagnetic waves? Light wave. Okay, light wave. और कौन सी? अरे बहुत सारे वेव्स है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Radio wave. रेडियो वेव्स, करेक्ट. और कौन से वेव्स हैं? Gamma rays. Gamma rays. Infrared rays. Okay. Gamma rays, X-rays, ultraviolet, infrared, microwave, radio waves, visible light, all these waves are electromagnetic waves. Now, why these waves are called electromagnetic? Because in that wave, there is electric field and perpendicular to is a magnetic field, and these fields are varying like a wave, and therefore it is called as electromagnetic wave. And these electromagnetic waves are having different frequencies or different wavelengths, and depending on their frequency or wavelength, we can categorize them into different frequency ranges or bandwidths. Okay. Now here
remember that all electromagnetic waves are having same or different velocity. यहाँ पे अभी जो मेंशन किया है मैंने, ये सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इन सब की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो अलग अलग होती है या सेम होती है? डिफरेंट अलग अलग होते हैं। Different. Okay, first thing I want to clear here is that all these electromagnetic waves are having same speed, and that is speed of light indicated by c. तो आप गैमा रे ले लो, एक्सरे ले लो, अल्ट्रावायलेट ले लो, इंफ्रारेड ले लो, माइक्रोवेव ले लो, रेडियो वेव ले लो, सभी की स्पीड होती है c, यानी कि Speed of light. speed of light. Are you able to see what I am writing? Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है। सी अभी जो है फंडामेंटल आपको सीखना है, और ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ठीक है। अभी पिछला जो आपको साल गया कोरोना की वजह से मे बी ऑनलाइन लेक्चर्स थे, तो आपका थोड़ा सा बेसिक शायद वीक होगा, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो आपको अगर बेसिक चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो 12th का बुक रेफर करो हमेशा। उसमें जो बेसिक फंडामेंटल दिया है फिजिक्स का, एक बार पढ़ा पूरा बुक तो बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि वो जो है बेसिक आपको पूरे आपके 4 साल जो है वहाँ पे आपको काम आ जाएगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आपको 11-12 का जो बुक है, जैसे आपको समय मिलता है, टाइम मिलता है, तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ो, क्योंकि बेसिक अगर आपका ठीक नहीं है तो आपको कौन सी भी ब्रांच रहने दो, आपको हायर जो स्टडीज़ है वो समझ में नहीं आएगा। मेरे जो वर्ड है वो अच्छी तरह से याद रखो। ये जो बेसिक्स होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये हर स्टेप में, हर चैप्टर में आपको आएगा अगले 4 साल के लिए। तो इसीलिए अगर पिछले साल आपको आपके टीचर ने शायद पढ़ाया नहीं होगा मे बी, या फिर कम पढ़ाया होगा, फिर भी आप खुद की मेहनत करो और अच्छी तरह से ये जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो क्लियर करो। ओके, अभी ये चैप्टर है इंटरफेरेंस, इसलिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ले रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आपको जो है बाकी जो कंसेप्ट्स है 11-12 के अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, देन एंड देन यू विल बीट द कंपटीशन। कंपटीशन बहुत बड़ी है, तो आपको भी वैसी ही तैयारी करनी होगी। सो इसलिए आपका जो बेसिक है, फंडामेंटल है, वो जल्द से जल्द आप उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसके लिए टाइम दे दो। ऑल राइट, सो सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, gamma ray, x-ray, ultraviolet, all these waves, light waves, all are having same velocity, that is 3 into 10 raised to 8 meters per second in air or in vacuum. Remember this. अगर ये सभी वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, gamma ray, x-ray, रेडियो वेव्स, whatever is that, अगर सबकी velocity अगर सेम है, let is c. Now c is the speed of electromagnetic wave. Now this velocity or speed can be expressed in terms of wavelength and frequency. So what relation shall I write here? C is equal to what? Wavelength and frequency का relation. Lambda into f Lambda. to f frequency. थोड़ा सा जोर से बोलो ना, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। Lambda into frequency f. Correct. Lambda into frequency. ओके, फ्रीक्वेंसी के लिए आप एफ यूज कर सकते हो, एन यूज कर सकते हो, या फिर ये जो न्यू होता है ये भी आप यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज लैम्बडा, दैट इज वेवलेंथ, this is a frequency. So frequency of wave into wavelength of wave is equal to speed of wave. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कौन से भी वेव्स के लिए। दिस वे दिस, यस
प्लैंक कांस्टेंट भी आता है ना इसमें? लैम्डा कांस्टेंट नहीं आएगा, आई विल शो नहीं, यू। प्लैंक कांस्टेंट h। नहीं, वो इसके लिए है, प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पे आता नहीं, स्पीड में प्लैंक्स कांस्टेंट आता नहीं है। प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ पे आता है? फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, दिस इज एनर्जी। ओके सर। इज दैट क्लियर? या। सो ये फॉर्मूला अलग है। लाइट में जो हम फोटोन नेचर कंसिडर करते हो उसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट। जो लाइट है वो बोथ नेचर दिखाती है, आपको पता है, वेव्स एज वेल एज पार्टिकल। अगर वो वेव दिखाती है तो हम वेव कंसिडर करेंगे, और उसकी जो स्पीड होती है c इज इक्वल टू लैम्डा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। और जब वेव पार्टिकल नेचर दिखाती है तो उस समय हम क्या करते हैं, उसको तो पार्टिकल को तो वेव लेंथ होता नहीं है, फ्रीक्वेंसी होता नहीं है पार्टिकल को, ठीक है। तो पार्टिकल को कौन सा कैरेक्टर होता है? एनर्जी का। सो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल यानी कि फोटोन होता है एच क्रॉस लिया है मैंने, सो दैट इज रॉन्ग, इट इज एच न्यू। एच क्रॉस ही बाद में आता है आपको, I will just erase this. This is h nu. This is h nu. H nu. Okay, I will just erase this. So energy of light photon is equal to h nu. H is Planck's constant and nu is a frequency of wave. Frequency of that not wave. Frequency of the photon you can say. For example, let's say. अभी यहाँ पे दिखा है विजिबल लाइट इज हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो यहाँ पे ये है रेड और ये है वायलेट है, यहाँ पे एक्चुअली ब्लू दिख रहा है बट एक्चुअली इट इज वायलेट। सो आपको पता है ये रेनबो का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कलर का? Vibgyor. वायलेट, इंडिगो, Blue. Blue, ग्रीन, green, yellow, yellow, येलो, orange, Orange. Red. Orange. ऑरेंज एंड रेड, Red. ठीक है, विबग्योर, ठीक है। ये रेनबो का आपका एक ये होता है स्पेक्ट्रम। सी रेनबो में आपको 7 कलर दिखते हैं, और कहाँ पे ऐसे 7 कलर दिखते हैं आपको? prism, वेर? प्रिज्म। Prism. प्रिज्म में आपको ये 7 कलर दिखते हैं, क्योंकि हम जो लाइट देखते हैं व्हाइट लाइट देखते हैं, लेकिन व्हाइट लाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ दीज मेन 7 कलर्स, 7 कलर्स, ओके। लेकिन याद रखो यहाँ पे जो आपको एक कलरफुल स्ट्रिप दिख रही है, इसमें 7 कलर है या ज्यादा कलर है? ज्यादा कलर शेड। ज्यादा कलर, ज्यादा कलर है, ओके करेक्ट। अभी ये ज्यादा कलर क्यों है? रिमेंबर दैट हमने सिंप्लिसिटी के लिए इसको वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ऐसा बोला है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये जो ब्लू है, ये ब्लू से लेकर ये ग्रीन तक यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं। अभी हर एक कलर को तो हम नाम नहीं दे सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ कलर्स आर देयर। अगर आप कोई नया डिस्प्ले लेते हैं, डिस्प्ले या फिर मोबाइल फोन लेते हैं, तो वहां पे होता है कलर 1 मिलियन कलर ऐसा लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये सारे कलर जो है वहां पे उसमें दिखते हैं। पहले जो डिस्प्ले या मोबाइल आते थे तो उसमें कलर्स लिमिटेड थे, ओके। जैसे कि मोनोक्रोमेटिक थे पहले, उसके बाद थोड़ा सा कलर उसमें आ गया, लेट्स से 10,000 कलर्स, 1 लाख कलर्स, अभी 1 मिलियन कलर्स। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख कलर्स। तो नया जो मोबाइल है उसमें एक जो स्पॉट होता है, एक जो डॉट होता है, उसमें आपको 1 मिलियन वेरिएशंस ऑफ कलर्स मिलते हैं एक जगह पे, एक स्पॉट पे। तो वो जो होता है 1 मिलियन कलर यानी कि ऑलमोस्ट ऑल द कलर्स इन विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ऐसा डिस्प्ले अच्छा होता है। ऑलराइट, सो जो व्हाइट लाइट होती है इट इज एक्चुअली लार्ज नंबर ऑफ कलर्स लाइक दिस,
और यहाँ पे जो वायलेट है, तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी है 7 × 10⁻14 हर्ट्ज, और वायलेट की जो वेवलेंथ होती है, वायलेट की वेवलेंथ होती है, एनीबॉडी, एनी गेस? एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये होती है वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर। देन रेड कलर की वेवलेंथ कोई बता सकता है मुझे? 7800 एंगस्ट्रॉम आई थिंक। 7800 एंगस्ट्रॉम, वेरी गुड, एक्सलेंट। सो मुझे बताओ अभी यहाँ पे वेवलेंथ सबसे कम किसकी है विजिबल में? वायलेट की। सर वॉयलेट की। करेक्ट। सो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ये अच्छी तरह से दिमाग में फिक्स करो, ये आपको बार बार आएगा। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। बीच में जो वेवलेंथ होती है वो वेरी होती है, एंड दैट वेवलेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम वायलेट टू रेड। तो मुझे बताओ अभी ग्रीन और येलो, इसमें ज्यादा वेवलेंथ किसकी रहेगी, ग्रीन या येलो की? येलो की। येलो येलो की। करेक्ट। सबको समझ में आ रहा है ना मैं जो बता रहा हूं यहाँ पे? यस सर। यस। यस सर। ओके, तो ये बेसिक चीजें है ना, बहुत बहुत एसेंशियल है, सबको पता होनी चाहिए। ओके, तो ध्यान से सुनो इसको। तो ये हो गया कलर और वेवलेंथ का। अभी फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो उल्टा होता है। अभी वेवलेंथ जो होती है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होती है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी फिर? सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी फिर? रेड की। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अभी यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन इज इक्वल टू एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन से कलर का फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? कौन से कलर के फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी? वॉयलेट। रेड। करेक्ट, इट इज वायलेट। क्योंकि वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसलिए वायलेट के फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी और रेड वाले फोटोन की एनर्जी सबसे कम रहेगी। इज दैट क्लियर? यस सर। तो इसी तरह से मुझे बताओ, अभी यहाँ पे आपको डायग्राम में जो दिख रहा है गामा रेस से लेकर रेडियो वेव्स, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? गामा रेस। और सबसे कम किसकी रहेगी? रेडियो वेव्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो अगर गैमा रेज, यानी और एक चीज है यहाँ पे, जितनी एनर्जी ज्यादा होती है वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उतनी उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होती है। तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? गैमा Gamma rays. So all of you know that gamma rays are having high penetrating power, while radio waves are having least penetrating power. तो इसलिए गैमा रेज जो है वो कौन से भी मटेरियल के आर पार जाते हैं, एंड इसलिए वो हैजार्डस भी होते हैं। सो विजिबल स्पेक्ट्रम के इस साइड में जो भी रेज होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और इस साइड में जो भी रेज होते हैं
वो उतने हार्मफुल नहीं होते हैं या ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हार्मफुल होते हैं, ये याद रखो, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, देयर एनर्जी, देयर पेनिट्रेटिंग पावर। आपको पता है एक्स-रेज आर डेंजरस, इवन अल्ट्रावायलेट रेज आर आल्सो डेंजरस फॉर आवर आईज एंड फॉर आवर स्किन, दैट ऑल ऑफ यू नो। सो इसलिए दीज आर हार्मफुल and these are less harmful or negligibly harmful. तो यहाँ पे गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, एंड देयरफॉर गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम है और रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। बट याद रखो, speed of gamma ray and radio wave is same, because our formula here is C is equal to lambda into nu, यानी कि अगर आपकी वेवलेंथ बढ़ जाती है तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम होती है और आपको जो मिलता है प्रोडक्ट वो हमेशा कांस्टेंट C रहता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. Now, can you tell me applications of these different spectrums? Gamma rays, where are the gamma rays used? ये gamma rays छोड़ो, पहले मुझे एक्सरे बताओ, एक्सरे सबको पता होगा। Where are the X-rays used? Hospital. बॉडी का हॉस्पिटल। के लिए। हॉस्पिटल। किसने इन्वेंट किया था एक्सरे को? एनीबडी? Röntgen. गूगल किया होगा पक्का। रॉन्टजेन ने इन्वेंट किया था एक्सरे को, ओके, करेक्ट। So X-rays are used in medical, not just in medical field, it is also used in industrial application. Industrial application भी उसके होते हैं, जैसे कि अगर कोई आपको वेल्डिंग किया है आपने और वो वेल्डिंग अंदर से ठीक है या नहीं, या कहाँ पे क्रैक गया है, वो चेक करने के लिए भी उसका मटेरियल का एक्सरे निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन और इंडस्ट्रियल टेस्टिंग, ठीक है। देन अल्ट्रावायलेट, वेयर आर द अल्ट्रावायलेट रेज आर यूज्ड? Anybody? Sir, in killing germs. Keeping? For killing germs. For killing? Sir, bacteria. Okay, correct. Bacteria killing के लिए इवन जो बग्स होते हैं उनको भी अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो फ्लाइज, स्पेशली फ्लाइज, तो उनको भी वो किल करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। और एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अल्ट्रावायलेट रेज का वो है करेंसी फेक नोट और फेक करेंसी चेकर, तो वहां पे भी अल्ट्रावायलेट रेज यूज किया जाता है। इवन इन क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टिगेशन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो होता है वहां पे भी अल्ट्रावायलेट रेज यूज किए जाते हैं टू सी द थंब प्रिंट, फिंगरप्रिंट्स, वो चेक करने के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेज यूज किए जाते हैं। विजिबल लाइट का तो कोई लिमिट ही नहीं है। कैन यू टेल मी एप्लीकेशंस ऑफ इंफ्रारेड यूजेस, कहाँ पे यूज होता है? Sir, weather To check forecasting. body temperature. Once again. Body temperature. Thermometer. A very common application of infrared is in Heat sense. Night vision. Remote. remote Sir, security camera.
और रिमोट कंट्रोल इज वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस एप्लीकेशन इंफ्रारेड का। आप सबका जो रिमोट होता है वो वहाँ पे इंफ्रारेड यूज किया जाता है। अभी अभी कुछ 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले रिमोट आ गए हैं रेडियो वेव्स वाले, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अभी भी इंफ्रारेड रिमोट्स आर वाइडली यूज्ड। सीसीटीवी कैमरा में भी यूज किया जाता है। उसका रीजन बता सकता है मुझे क्यों यूज किया जाता है इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड लाइट वहाँ पर? लाइट विजन। उसका रेंज कम होता है। सी इंफ्रारेड वहाँ पे इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि रात में अगर वहाँ पे एलईडी यूज करेंगे, मतलब हमारी विजिबल लाइट यूज करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे अननेसेसरी लाइट वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन इंफ्रारेड अगर आप यूज करते हो तो कैमरा जो है कैप्चर करता है इंफ्रारेड रेस को, मतलब बाहर से हमारी नेकेड आइज को तो कोई दिखता नहीं है, यानी चोरों को कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन कैमरा का वो जो चल रहा है वो दिखाई देता है, इसलिए इंफ्रारेड वहाँ पे यूज किए जाते हैं सिक्योरिटी रीजंस के लिए। ऑल राइट, इंफ्रारेड और एक एप्लीकेशन है इंफ्रारेड का मेडिकल फील्ड में, थेरापेटिक यूज, यानी कि अगर आपको कोई जॉइंट पेन है, कोई मसल पेन है, तो वहाँ पे उसको कम करने के लिए भी इंफ्रारेड यूज किया जाता है। देन माइक्रोवेव्स, वेरी कॉमन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव्स, कैन यू टेल मी? माइक्रोवेव। करेक्ट, माइक्रोवेव मशीन जो होता है वहाँ पे हीट करने के लिए ये यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, मिलिट्री फील्ड में भी है। रेडियो वेव्स, कैन यू टेल मी द एग्जांपल ऑफ रेडियो वेव्स एप्लीकेशंस? सर टीवीएल, ट्रांसपोर्टिंग टीवीएल सिग्नल। रेडियो। सर नेविगेशन। हर जगह, करेक्ट। टेलीविजन में होता है, रेडियो में होता है, इवन मोबाइल आपका जो होता है वायरलेस मोबाइल, वाईफाई होता है, तो वहाँ पे हर जगह ये रेडियो वेव्स यूज किए जाते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके हैं। अभी लास्ट रहा गैमा रे। एनीबॉडी नोज द एप्लीकेशन ऑफ गैमा रेस? सर वो कैंसर ट्रीटमेंट। पैरालाइज करने के लिए सर, किसके लिए? मेडिकल किट्स कैंसर करने ट्रीटमेंट। के लिए है। रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, ओके। वहाँ पे यूज कैंसर होता है रेडियोथेरेपी में, करेक्ट, यू आर करेक्ट। और इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत सारे हैं गैमा रेस के, टू कट न्यूक्लियर सर्टन, इंडस्ट्री। यस, एक्सरे का जैसे यूज होता है उसी तरह से गैमा रेस का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्सरे और गैमा रेस के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। हमारा जो सेकंड लास्ट जो चैप्टर है NDT, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये हमारा स्पेशल चैप्टर है। वहाँ पे आपको ये गैमा रेस और एक्सरेज का एप्लीकेशन वहाँ पे हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो फिलहाल अभी जो है हम जस्ट कॉन्सेंट्रेट करेंगे लाइट के ऊपर। तो ये जो बेसिक सारी जानकारी है, आई होप इट इज helpful to you. It is helpful to make your basic understanding more clear about electromagnetic spectrum. All right, before proceeding ahead, so if you are having any doubt in your mind, you can ask right now. Any question, please ask. No question? नो सर। Okay, I hope everything is clear to all, and if it is so, we can move to the next. Now, after electromagnetic spectrum, we have to see what is interference. See, interference की definition हम देखने जा रहे हैं. Before that, I will tell you what is the principle of superposition. Principle of superposition 11-12 में भी आपका हो चुका है. I will just recap here this thing. सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी सुपरपोजिशन जो वर्ड होता है ये बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत मतलब ऐसा अलग वर्ड का, अलग दुनिया का ये वर्ड लगता है, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। सुपरपोजिशन का सिंपल मीनिंग है एडिशन, ओके। सिंपल मतलब जो है सुपरपोजिशन का वो होता है एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है ये?
It states that whenever two light waves traveling in a medium arrive at a point simultaneously, then the resultant displacement of the medium particle is always equal to algebraic sum, यानी कि addition of the displacements due to two waves. अब ये क्या होता है वो हम नेक्स्ट डायग्राम में देखने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं. बिफोर दैट आई विल टेल यू व्हाट इज द इंटरफेरेंस. डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस इज लाइक दिस: the modification in the distribution of intensity in the region of superposition is called as interference. अभी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो बताया मैंने, ये सिर्फ कंसेप्ट आप याद रखो कि अगर दो वेव्स ऐसे आते हैं, एक वेव ऐसी आ रही है, दूसरी वेव ऐसी आ रही है यहाँ पे, तो वहां पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वहां पे रिजल्टेंट क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन द फेज ऑफ दीज टू वेव्स. ओके, दैट विल सी लेटर ऑन. तो ये हमें प्रिंसिपल बताता है सुपरपोजिशन का. और इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस इज जस्ट ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस. अब ये हो गए डेफिनेशंस. एक्चुअली यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स व्हेन वी सी द एक्चुअल इंटरफेरेंस कंसेप्ट. नाउ देयर आर two types of interferences. One is called as a constructive interference and other is called as a destructive interference. To understand constructive interference, consider this diagram. Now in this diagram there are two waves. Okay, so this is first wave and this is second wave. This is first wave and this is second wave. Now just looking at first and second wave, can you tell me what are the common things in wave 1 and wave 2? What is similarity between wave 1 and wave 2? Wavelength is equal. Correct, wavelength is same and therefore frequency is the same. And what is different? Frequency. Amplitude. Amplitude. Amplitude is different. Correct, frequency is the same, amplitude is different. किसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा है, पहले की या दूसरे की? पहले यस, पहले की एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा है और दूसरे की जो है वो कम है. और एक सेम थिंग है दोनों वेव में, वो क्या है? Apart from wavelength and frequency, one more thing is there which is same in both the waves. What is that? Velocity. Period. Path. Phase. Yes, Phase. phase. Correct, that is very important here word, that is phase. Phase of that wave, both the waves is same. यानी कि let's say if I draw a line here, vertical line here, okay, then you will find that along that vertical line at the same location you will find that both waves are having crest. It means that both the waves are in the same phase. Okay, अगर यहाँ पे एक वेव की क्रेस्ट होती और दूसरी वेव की यहाँ पे ट्रफ होती तो यहाँ पे दोनों आउट ऑफ फेज होते, लेकिन यहाँ पे दोनों वेव जो है सेम फेज में है, ऐसा हम इसको बोलते हैं. Now in this situation, if such a two waves arrive at a point, or let's say if we mix these two waves, if we add these two waves, what will be the resultant? Resultant will be this wave. So this is your resultant wave. Okay, this is your resultant wave. So यहाँ पे क्या हो गया है? तो पहले जो दो वेव्स है, दोनों वेव का क्या हो गया यहाँ पे? एम्पलीट्यूड का क्या? एडिशन हो गया. तो पहले वेव का एम्पलीट्यूड इतना था, दूसरे का इतना था, और रिजल्टेंट जो वेव बन गई हमारी एडिशन के बाद, तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया इसका. सो ऐसा जो इंटरफेरेंस होता है वेव का, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, and exactly opposite is in destructive interference. Before that, remember that path difference for constructive interference must be equal to n lambda. अगर पाथ डिफरेंस दो वेव्स यानी कि वेव 1 और वेव के बीच पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा है, where n is equal to 0, 1, 2 etc. natural numbers अगर है, then and then there will be constructive interference. And
In destructive interference, you will find that this is a wave 1, this is wave 2, and now first wave's crest is overlapping with the second wave's trough. Means both the waves are out of phase, and in that case there will be subtraction of amplitude. Subtraction of amplitude. ये छोटी वेवलेंथ एम्पलीट्यूड बड़े एम्पलीट्यूड से कम होगी और रिजल्टेंट वेव आपको इस तरह से मिलेगी. सो दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड हमेशा कम होती है कंपेयर टू द एनी एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स. और यहाँ पे रिजल्टेंट वेव की जो एम्पलीट्यूड होती है वो हमेशा ज्यादा होती है. ओके और यहाँ पे हमेशा ये कम होती है. दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अभी यहाँ पे दो वेव जो है वेव 1 और वेव 2 इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आर हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स. अगर दोनों वेव यहाँ पे सेम एम्पलीट्यूड के होते तो हमारा जो रिजल्टेंट आता है यहाँ पे उसकी एम्पलीट्यूड कितनी आती? 0 सर. करेक्ट. अगर यहाँ पे दोनों वेव्स ओके फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव दोनों वेव का एम्पलीट्यूड यहाँ पे सेम होता, दोनों वेव आउट ऑफ फेज रहते तो रिजल्टेंट वेव जो रहती हमारी उसकी एम्पलीट्यूड 0 आ जाती. यानी कि ऐसा आपको ड्रॉ करना पड़ता. लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है सेम नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे छोटा सा एम्पलीट्यूड इसका दिख रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज ए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. And in this case, path difference is equal to 2n plus 1 into lambda by 2, where n is equal to 0, 1, 2, etc. अब मुझे बताओ यहाँ पे 2n plus 1 ये क्या है? What is 2n plus 1? Path difference. No. Mathematically, what is it? Odd number. Correct. Odd number, odd natural number like 1, 3, 5, 7, 9 like this. Okay. So n की वैल्यू कितनी भी रहने दो नेचुरल नंबर, लेकिन 2n plus 1 हमेशा ऑड नंबर आता है. सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ. ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ. रिमेंबर दिस. This is very important condition for destructive interference. और यहाँ पे integral multiple of wavelength of light. So understand this difference. Keep this particular thing in mind. Constructive interference में path difference integral multiple of wavelength होता है और destructive interference में path difference odd multiple of half the wavelength होता है. अच्छी तरह से दिमाग में फिक्स करो. Alright, time is over. We will stop here. I will take your attendance. Don't leave the meeting. Don't leave the meeting until and unless I take your attendance. Okay, so this is 55 students are there. All right, I have taken your attendance. Now all of you can leave this meeting and you can join the next lecture. We will meet on Monday. Thank you, sir. Thank you, sir.